students, now we will start our new topic, that is argument against social responsibility. क्या क्या अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं जब अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैक करते हैं, या अगर जब कभी भी अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं तो क्या क्या रीजन होते हैं जिससे कि हम अवॉइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। सबसे पहले वॉलिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ा कंपनी हर एक बिजनेस का मोटिव होता है, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट। इन अर्निंग द प्रॉफिट द company or the industry forget each and everything related to society. Their main motive is to earn the maximum profit from the available resources which are easily available to them. So we can say that when we have an objective of profit maximization, the company or the industries forget each and everything related to social responsibility, which is a huge setback or drawback for the industries. Burden on consumers to create or to live in an environment that is pollution free. It is very difficult and it is very cost consuming. Because of cost consuming, if the industries plant that kind of thing, then what can happen? They use that cost in increasing the price of the product. As soon as the price of the product, it becomes a burden for the consumer to buy that product, because the price of the product has been increased by the industry or by the factory or by the businessman, because he has invested a huge amount of money in the pollution free environment for the society. Next, lack of social skills. बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं हो पाती। हम लोगों को जिस तरीके से काम करना होता है वो हम उस स्किल्स के रिक्वायरमेंट में नहीं मिल पाते। जब हमें दैट काइंड ऑफ पीपल व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू अस टू अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी, देन व्हाट कैन हैपन? द industry cannot work efficiently and effectively, and because of that what can happen? The industry can suffer a huge amount of loss, or it can increase the expenditure of the industry or the businessman, because of which the price of the product has been increased and it is difficult for the consumer to buy that kind of product. Next, lack of broad public support. बहुत बार क्या होता है, the businessman does not work according to need of society. They work according to the profit of the business. वो लोग अपने business के हिसाब से सोचते हैं, तो they do not realize the harmful effects which has been done on the people by the industries, and because of that the people who are living in the nearby area does not support that industry, because they think that if this industry is not thinking about themselves, then why we will think about them, so because of that what can happen? The social responsibility of the industry cannot be get fulfilled. So these were the argument that which were against the social responsibility. Next, reality of social responsibility. इसके अंदर क्या होता है? Now students, we will move to the next topic, that is reality of social responsibility. First, सबसे पहला आता है इसका threat to public regulations. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बार लोगों ने बनाए होते हैं वो अपने सिर्फ बिजनेस ने बनाए होते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत बार सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको उनके हिसाब से नहीं चल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है, उनको वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो भी पब्लिक के रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत बार खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे कि उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार उनको ना चाहते हुए भी उस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू अर्न द मनी टू लिव देयर लाइफ। सो रियलिटी क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि पब्लिक रेगुलेशंस को बहुत बार तोड़ दिया जाता है। इस कारण बिजनेस अपना मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्निंग का वो अपन कर सके। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। उनको ये मतलब नहीं होता कि कौन किससे क्या काम कराना, नहीं। दे हैव टू वर्क, देयर मोटिव इज टू minimize the cost of production, so the price of the product can be minimized. If the price of the product can be minimized, what can happen? The consumer can easily buy that product at the minimum cost. इससे क्या होता है कि वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो भी इंसान है, जैसा भी इंसान है, वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस
किस तरीके से कम कर सके जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, जिससे कि हम हमारा मैक्सिमम आउटपुट मार्केट में प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। आजकल की जो लेबर है वो एजुकेटेड हो गई, स्किल्ड हो गई है, इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि जहां उनको सबसे बेस्ट पैसा मिले वो लोग वहां पे स्विच हों। जैसे ही वो वहाँ पे स्विच होंगे उनको क्या होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वो इजीली वर्क करेंगे, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, उनको सिक्योरिटी देगी कि नहीं अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिलीज को इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो कंपनी में हम काम करें वो इजीली रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, लेबर जब मूवमेंट करती है तो जिस इंडस्ट्री में वो पहले काम करी थी उसमें वो काम नहीं कर पाती, उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस जजमेंट नहीं मिल पाता, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर क्या चीज़ डिमांड करता है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिपेंड करती है। और जैसा कि आज की डेट में हम सब लोग जानते हैं कि आजकल की डेट में मीडिया और जितना भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं ये हम लोग कंज्यूमर्स को इतना एजुकेट कर चुका है कि दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, हु इज सेइंग करेक्ट थिंग एंड हु इज सेइंग द रॉन्ग थिंग। सो ये इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कंज्यूमर्स की उनको पता होता है या मीडिया उनको बता देती है कि किस तरीके से आप इस कंपनी के थ्रू जाओ या इस कंपनी से प्रोडक्ट बाय करो, जिससे कि आपको कंज्यूमर को ईजी हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट से और आपकी मैक्सिमम नीड्स फुलफिल हो पाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस का सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि अपन ने पैसा दिया कोई भी बिजनेस खोलना चाहे अपन बिजनेस कर सकते हैं और जितने भी रिसोर्सेज है वो सब खत्म कर सकते हैं, नहीं। In today's scenario, what we are dealing is that first of all, the work should be done systematically ordered. First, government approval must be there to start any kind of work. The government will check whether it is an illegal work or a work which can be done easily. Though these all were the things which has to be think before setting up a new standard of business. इससे क्या होता है कि हम हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनका वर्कआउट है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। आज की डेट में हर एक बिजनेस करना चाहता है, इसलिए हम सोशल में जितने भी लोग होते हैं वो सब उनको एजुकेट करते हैं कि आप इस तरीके से काम करो, या फिर उनका जो एजुकेशन लेवल होता है वो इंक्रीज करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रॉपर तरीके प्लानिंग से समझाते हैं हम इस मोटिव से काम कर रहे हैं, हमारा ये काम है, आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि हम हमारा बिजनेस किस तरीके से रन करना है वो वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो एम्प्लॉयज को और लोगों को बता दें, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना होता है। सोशल इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और बिजनेस इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो हम ये दोनों चीजें साथ में लेके चलते हैं, जिससे कि हम दोनों चीजों में बैलेंस बना सके और इजीली वर्कआउट कर सके। अगर सिर्फ हम बिजनेस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग नहीं चल पाएगा या लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा हमें, या फिर अगर हम सोशल इंटरेस्ट को लेके काम करेंगे तो जितनी भी कैपिटल हमने लेबर लगाई है उनको हम उनके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, इससे कि हम दोनों के बीच में बैलेंस बना सके। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस। जितने भी प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास के लोग हैं उनको डेवलप करना। अपन सीए बनाते हैं, सीए इज व्हाट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, लॉयर, प्रोफेशनल वर्ड। तो हमें जितने प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास के लोग हैं उनको डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को बेस्ट तरीके से यूज कर सके और लोगों को जो चीजें की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड कर सके, जिससे कि हम हमारा बिजनेस स्मूथली चला सकें। तो ये कुछ रियलिटी है जो कि एग्जैक्टली होनी चाहिए फॉर द केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेसमैन। थैंक यू।